وہ اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر ہلکا ہلکا خون لگا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ہتھیلی پر جذب ہو رہے تھے۔ اسے اپنی غلطی پر پچھتاوا تھا، لیکن اب پچھتاوے ہی رہ گئے تھے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ قسمت اسے معافی مانگنے کا ایک موقع دے گی بھی یا نہیں۔ وہ تو ہمیشہ اسے قید کر کے رکھنا چاہتا تھا، اپنی قید میں تڑپتے سسکتے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن شاید اسے یہ قید منظور نہیں تھی۔ تبھی تو اس نے اس قید سے رہائی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو موت میں جھونک دیا تھا۔ تہجد کا وقت تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح الارم بجتے ہی اٹھ گئی تھی، وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اللہ پاک، آپ تو جانتے ہیں نا، میں نے انہیں کبھی دعاؤں میں نہیں مانگا تھا۔ میں تو قسمت کے ہر فیصلے پر مطمئن تھی۔ میں نے کبھی بھی انہیں اپنا نصیب کرنے کی دعا نہیں مانگی، پھر کیوں آپ نے مجھے ان سے منسوب کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ان کی محبت نہیں ہوں، ان کی محبت کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں کچھ بھی تو نہیں ہوں ان کے لیے، میرا ہونا نہ ہونا ان کے لیے ایک جیسا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر ہتھیلیوں پر گر رہے تھے اور وہ اپنا منہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اس وقت حویلی کے ایک کمرے کے باہر بہت سے لوگ جمع تھے اور وہ کب سے دروازہ پیٹ رہے تھے، لیکن اندر موجود وجود شاید کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ دروازہ کھولو بیٹا، دروازہ کھولو۔ دروازے کے باہر کھڑی خاتون نے آواز لگائی، میرا دل ہول رہا ہے، کوئی دروازہ توڑو۔ کسی نے دروازے کو دھکے دیے تو دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی سب کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کمرے میں 22 سالہ لڑکی سرخ رنگ کا لہنگا پہنے زمین پہ گری پڑی تھی۔ بیا، اس کی ماں نے اس کا سر اپنے گھٹنوں پر رکھا اور بلک بلک کر رونے لگی۔ سانسیں ہمیشہ کے لیے رک گئی تھیں۔ لڑکی کے دونوں ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا اور سانسیں ہمیشہ کے لیے رک گئی تھیں۔ جون کا مہینہ تھا، ہر طرف گرمی کا راج تھا۔ اسے یونیورسٹی جوائن کیے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ کلاس ختم ہوتے ہی وہ کسی کو ڈھونڈتی ہوئی کینٹین پہنچی۔ اوف، اتنی گرمی ہے اور میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی، مگر مجال ہے آپ آسانی سے مل جائیں، وہ کسی کے پاس کھڑی بیزاری سے کہہ رہی تھی۔ اس شخص کی پشت مہرماں کی طرف تھی۔ سوری میم، آپ کو کوئی غلط، وہ کہتے ہوئے پلٹا ہی تھا، لیکن الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس کے مقابل کھڑی لڑکی کو دیکھ کر کہیں کی شہزادی کا تصور ہو رہا تھا اسے۔ چہرے پر معصومیت کے ساتھ ساتھ بیزاری سموئی وہ اس کی منتظر تھی۔ مہرماں کی مقابل کو دیکھ کر ہوائیاں ہی اڑ گئیں۔ سوری وہ مہرماں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تم یہاں ہو؟ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کا کزن عباد تھا۔ یہ کون ہے؟ عباد نے شاہزین کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں تھے تم؟ کب سے ڈھونڈ رہی تھی تمہیں میں سمجھی تم بیٹھے ہو اور بولنا شروع ہو گئی، مہرماں نے غصے سے دھیمی آواز میں کہا۔ او، عباد نے بات سمجھ آنے پر کہا۔ کیا او؟ معذرت کرو ان سے، مہرماں نے رازداری سے کہا۔ سوری، میری کزن کو غلط فہمی ہو گئی تھی، دراصل اتفاق سے ہماری شرٹس کے کلر سیم ہیں۔ عباد نے مسکراتے ہوئے معذرت کی۔ اٹس اوکے، شاہزین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نائس ٹو میٹ یو، عباد نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ می ٹو، شاہزین نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا، اور پھر دونوں وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر تک شاہزین کی نظروں نے مہرماں کا پیچھا کیا۔ تم نے اس سے کہیں اظہار محبت تو نہیں کر لیا تھا؟ عباد نے شرارت سے کہا۔ فضول بکواس نہ کرو، مہرماں نے تپ کر جواب دیا۔ وہ دونوں ابھی یونیورسٹی سے گھر آئے تھے۔ مہرماں کا گرمی کی وجہ سے ویسے ہی برا حال تھا، اوپر سے عباد بار بار اسے تنگ کر رہا تھا۔ بتاؤ نا، تم نے کیا کہا تھا اسے؟ یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ جانو بات سنو، عباد نے شرارت سے پھر اسے دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ امی، مہرماں چیخی۔ کیا ہوا مہرماں؟ وہ جلدی سے کچن سے آئیں اور فکر مندی سے پوچھا۔
क्यों रोका हुआ है अभी तक आपने इसे? महरमा ने इबाद की तरफ इशारा करते हुए कहा। शर्म करो महरमा, ऐसे बोलते हैं क्या? फाइजा बेगम ने उसे घूरते हुए कहा। संभालें इन्हें आप, कब से मुझे परेशान कर रहे हैं, महरमा ने तंजिया कहा। मोमानी अब मैं चलता हूँ। इबाद ने इजाज़त चाही। बोल तो ऐसे रहे हैं मैं चलता हूँ जैसे हमें पता ही नहीं कि आप भी चलते हैं। जाहिर सी बात है, पाँव अल्लाह पाक ने चलने के लिए ही दिए हैं, महरमा ने धीमी आवाज़ में कहा ताकि सिर्फ इबाद ही सुन सके, क्योंकि फ़ाइज़ा बेगम सुन लेती तो फिर उसकी क्लास ही लग जानी थी। हमीद साहब के सिर्फ 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा जुहेब और छोटी बेटी तहमीना। उनके घरों में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था। तहमीना के मैट्रिक के इम्तहान के बाद उन्होंने तहमीना की शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी और जुहेब की शादी अपनी भांजी फ़ाइज़ा से। फ़ाइज़ा और जुहेब का एक बेटा था शुएब। उन दोनों को बेटी की बहुत ख्वाहिश थी। फिर अल्लाह पाक ने शुएब की पैदाइश के 15 साल बाद उन्हें अपनी रहमत से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने महरमा रखा था। महरमा की पैदाइश के 2 साल बाद उनके घर एक और रहमत आई, हमना। तहमीना कम उम्री में ही बेवा हो गई थी। उसका सिर्फ एक ही बेटा था, इबाद। इबाद महरमा से 2 साल बड़ा था। हमीद साहब की ख्वाहिश पर महरमा और इबाद की मंगनी कर दी गई थी। शुएब बैरूने मुल्क रहता था। महरमा और इबाद एक ही यूनिवर्सिटी में थे। महरमा का पहला साल जबकि इबाद का आखिरी साल था। जुहेब साहब को अपनी बेटियों को पढ़ाने का शौक़ था, इसलिए उन्होंने महरमा का एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। तहमीना बेगम ने बहुत रोला डाला था क्योंकि उन्हें कॉलेज में भी एडमिशन लेने की इजाज़त नहीं मिली थी। इबाद ने महरमा को लाने ले जाने की जिम्मेदारी खुद ली थी। हमना अभी कॉलेज में थी और उसे आर्ट्स का बहुत शौक़ था। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं छोटी मम्मा? शाहजैन कमरे में दाखिल होते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम यहाँ हो? मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, सबा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। छोटी मम्मा इसे समझा दें, मुझसे ज़्यादा फ्री ना हुआ करे, शाहजैन ने गुस्से से कहा। सबा जाओ अपने कमरे में, और 1000 बार कहा है बड़ा भाई है, परेशान मत किया करो, जवेरिया बेगम ने समझाते हुए कहा। भाई माय फुट, सबा पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। शाहजैन के वालिद अली खान की शादी उनकी कज़न आसमा से हुई थी। शादी के चंद साल बाद आसमा का इंतकाल हो गया था। उन दोनों की सिर्फ एक बेटी थी, ज़ूबिया। घर वालों के इसरार पर उन्होंने अपनी छोटी साली से शादी कर ली थी। उन दोनों का एक बेटा हुआ, शाहजैन। ज़ूबिया से 12 साल छोटा था वो। जवेरिया ने ज़ूबिया और शाहजैन में कभी कोई फ़र्क नहीं रखा था। उन्हें जितना शाहजैन अजीज़ था उतनी ही ज़ूबिया भी। अली खान के छोटे भाई हाशिम खान की सिर्फ एक ही बेटी सबा थी। उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। जब से शाहजैन और ज़ूबिया के साथ साथ सबा की तरबियत भी जवेरिया बेगम ने की थी, लेकिन जवेरिया अपने बाप की तरह खुद सर थी। शाहजैन जब 8 साल का था, उसके वालिद और बहन अपने खालके हकीकी से जा मिले। शाह विला इस्लामाबाद में मुकीम था, लेकिन शाहजैन और सबा कराची की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। शाहजैन का अपना अपार्टमेंट था जहां वो रिहाइश पजीर था, जबकि सबा हॉस्टल में रहती थी। वो दोनों छुट्टियों में इस्लामाबाद आ जाया करते थे। पता है आज मुझे मैम से इतनी डांट सुननी पड़ी, महरमा मुंह बिसोरते हुए बोली। सॉरी। इबाद कब से कई बार उसकी ये बात सुनता और सॉरी कहता रहा था, लेकिन वो फिर से उस पर शुरू हो जाती। सॉरी, पता भी है इतनी बेइज्जती हुई, लेकिन आपने टाइम पर यूनिवर्सिटी ना छोड़ने की कसम खाई हुई है। वो फिर से गुस्से से नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई थी। वो दोनों उस वक्त ग्राउंड में थे। बस भी करो महरमा, कितना बोलती हो तुम, कह तो दिया सॉरी, और कितनी बातें सुनाओगी? इबाद बेजारी से बोला। पहले गलती करते हैं और मिस्टर इबाद को किसी की बातें सुनना भी नहीं पसंद, महरमा ने तंजिया कहा। उस बेचारी को थोड़ा आराम दे दिया करो, ये भी सोचती होगी कौन से नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिली है। इस बेचारी को थोड़ा आराम दे दिया करो, ये भी सोचती होगी कि कौन से नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिली है। पूरे दिन चलते चलते थकी जाती होगी, इबाद ने शरारत से कहा। महरमा गुस्से से दोबारा कहना शुरू करती, इससे पहले वो सामने से आते शाहजैन से टकरा गए, जो फ़ोन पर बात करता हुआ आ रहा था। महरमा के हाथ में मौजूद कोल्ड ड्रिंक शाहजैन की शर्ट पर गिर गई। शाहजैन ने हैरत से अपनी शर्ट को देखा,
जो पूरी तरह गीली हो चुकी थी, और फिर सामने खड़ी मासूम हसीना को। सॉरी करो इन्हें, महरमा ने साथ खड़े इबाद के कान में कहा, खुद ही कर लो। इबाद ने फुर्सत से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बिला वजह मुझसे लड़े जा रहे थे। महरमा ने सारा मलबा इबाद पर डाल दिया। गलती खुद की है तो सॉरी मुझसे क्यों करवा रही हो? वाह, इबाद ने तंजिया कहा। देखो कर लो, अच्छे भाई नहीं हो, महरमा ने बेध्यानी में कहा। अल्लाह को मानो महरमा, क्यों मुझे हार्ट अटैक करवाना चाहती हो? मैं कोई भाई वाई नहीं हूँ तुम्हारा, इबाद ने गुस्से से कहा। ओह, भूल गई थी, महरमा ने अपने सर पर आहिस्ता से चपत लगाते हुए कहा। तुम्हारी इकलौती मंगेतर हूँ, मांग लो माफ़ी प्लीज़, महरमा ने मक्खन लगाते हुए कहा। नहीं, इबाद भी अपनी ज़िद पर बज़िद था। नहीं हूँ मैं तुम्हारी कोई इकलौती मंगेतर, महरमा ने अबरू उचकाते हुए कहा। मेरा मतलब था कि मैं माफ़ी नहीं मांग रहा, इबाद ने वजाहत की। सॉरी, हमने आपको देखा नहीं था, इबाद ने बिलाखिर माजरत की। इन्होंने क्या आपको पैगाम देने के लिए रखा हुआ है? शाहजैन ने महरमा को देखते हुए इबाद से कहा। हाँ नहीं, हाँ इबाद ने और नहीं महरमा ने बैक वक्त कहा, जिस पर शाहजैन का कहकहा बुलंद हुआ। तो महरमा ने खूनख्वार नज़रों से इबाद को घूरा। वो दोनों अलविदाई कलमात कहते हुए वहाँ से चले गए। बाबा, हम दोनों में से आपको ज़्यादा मोहब्बत किससे है? महरमा ने तजस्सुस से पूछा। महरमा से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बाबा, ये गलत बात है, मैं छोटी हूँ इसलिए आपको मुझसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए थी, हमना ने मुंह बिसोरते हुए कहा। तुम तीनों ही से मुझे मोहब्बत है, उन्होंने हमना को प्यार करते हुए कहा। लेकिन महरमा में मेरी जान बसती है, उन्होंने हमना को देखते हुए शरारत से कहा। बाबा, आई लव यू, महरमा ने उनके गले लगते हुए कहा, और मुंह पर 12 बजाए हमना को देखकर उसे मुंह चिढ़ाकर भाग गई। ये लड़की पता नहीं कब सुधरेगी, फाइजा बेगम ने पेशानी पर बल लाते हुए कहा। बच्ची है अभी, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी, उन्होंने महरमा और हमना को देखते हुए कहा, जो एक दूसरे के पीछे भाग रही थी। कुछ ही दिनों में शाहजैन की इबाद से दोस्ती हो गई थी। शाहजैन का इबाद से दोस्ती करने के पीछे मकसद महरमा थी, क्योंकि जहाँ इबाद होता वहीं महरमा होती, इसलिए महरमा को अपनी नज़रों के सामने रखने के लिए शाहजैन ने इबाद से दोस्ती कर ली। वो तीनों उस वक्त ग्राउंड में थे। कॉलेज में मैच था जिसमें शाहजैन और इबाद ने हिस्सा लिया था। इबाद शाहजैन की मुखालिफ टीम में था। उनकी प्रैक्टिस खत्म होते ही वो महरमा की जानिब आई। महरमा वहीं बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी। इबाद, आपको प्रोफेसर ने बुलाया है, एक लड़के ने इबाद को मुखातिब करते हुए कहा। मैं अभी आता हूँ, इबाद कहता हुआ उस लड़के के पीछे चल दिया। महरमा और शाहजैन इधर उधर की बातें करते हुए चल रहे थे। अचानक महरमा का पाँव मुड़ा और वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रखते हुए गिर गई। आह, महरमा की चीख निकली। आप ठीक तो हैं? शाहजैन ने उसे हाथ के सहारे से उठाते हुए कहा। महरमा का पाँव मुड़ने की वजह से उससे चला नहीं जा रहा था। शाहजैन उसे सहारा देता हुआ बेंच तक ले आया। दूर खड़ी सबा ये सारा मंजर देख रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और शाहजैन के बीच में आने की? तुम्हें तो मैं नहीं बख्शूंगी, सबा ने महरमा को अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए गुस्से से कहा। क्या हुआ तुम्हें? इबाद ने महरमा से पूछा आकर। मेरे पैर में मोच आ गई है, महरमा ने रूहान सी होते हुए कहा। लाओ दिखाओ मुझे। इबाद उसके पाँव को देखने लगा। इबाद अपने हाथ से धीरे धीरे उसका पाँव दबा रहा था और शाहजैन को ये देखकर गुस्सा आ रहा था और गुस्से में बिना कुछ कहे वो वहाँ से चला गया। कौन थी वो लड़की? सबा ने शाहजैन के पास आकर पूछा। कौन सी लड़की? शाहजैन ने नासमझी से कहा। वही जिससे खुद चला नहीं जा रहा था, तो तुम उसे चलना सिखा रहे थे, सबा ने तंजिया कहा। यह तुम्हारा मसला नहीं है, शाहजैन ने उसे नज़रअंदाज करते हुए कहा। तुमसे जुड़ा हर शख्स मेरा मसला है, सबा बोली। तुम होती कौन हो मेरे मामले में बोलने वाली? शाहजैन ने सवालिया नज़रों से उसे देखकर कहा। आज इतनी देर हो गई यूनिवर्सिटी से आने में? इबाद घर में दाखिल हुआ तो तहमीना बेगम ने पूछा। महरमा के पाँव में मोच आ गई थी, पहले इसे हॉस्पिटल लेकर गया फिर घर छोड़ा तो देर हो गई इसलिए, इबाद ने सोफे पर बैठते हुए कहा। पता नहीं इस लड़की को सुकून क्यों नहीं है, उन्होंने तंजिया कहा। हद है अम्मी, अब उसके पाँव में मोच आ गई है, इसमें भी उसकी गलती है क्या? इबाद बेयकीनी से बोला। पढ़ने गई थी या रेस करने जो पाँव में मोच आ गई उसके यूनिवर्सिटी में?
उन्होंने अपना लहजा बरकरार रखते हुए कहा। हर वक्त पीछे पड़ी रहती हैं आप मेहरमा के, इबाद ने मुंह बिसोरते हुए कहा और वहां से उठकर चला गया। सर्दी का मौसम था, रात का पहला पहर चल रहा था, हर जानिब सन्नाटा था। वो बालकनी में खड़ी अपनी सोचों में गुम थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू कर गुजर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी वालदा दरवाजे पर खड़ी थी। सरसरी सी नज़र उन पर डालकर वो दोबारा बाहर देखने में मसरूफ़ हो गई। पिया, उन्होंने उसे पुकारा। जी अम्मी, वो उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम्हारे बाबा कह रहे हैं कि मैं कल तुम्हें मार्केट से तुम्हारी पसंद का सूट दिला लाऊं शादी के लिए। उन्होंने अपने आने का मकसद बयान किया। जब शादी पसंद की नहीं हो रही तो सूट पसंद का लेकर क्या करूंगी मैं, उसने अफसुर्दगी से कहा। आप अपनी पसंद से ले आइएगा, बिया ने उनके चेहरे पर बेबसी देख कर कहा था। वो जानती थी उसके बाबा के सामने किसी की नहीं चलती। हमना पेंटिंग पर रंग भरने में मसरूफ़ थी जब मेहरमा उसके कमरे में दाखिल हुई। क्या कर रही हो हमनी? मेहरमा हमेशा उसे प्यार से हमनी कहती थी। कुछ नहीं, हमना ने मुख्तसरन जवाब दिया। क्या पेंट कर रही हो, मुझे भी दिखाओ। मेहरमा ने उसकी पेंटिंग देखने की कोशिश की तो हमना सामने आ गई। देखने दो ना, मेहरमा ने मुंह बिसोरते हुए कहा। आप ही मम्मा बुला रही हैं आपको, हमना ने बहाना बनाया। मुझे पता है नहीं बुला रही मम्मा, बस तुम मुझे अपनी पेंटिंग दिखाना नहीं चाह रही, ऐसा ही है ना? मेहरमा ने मुंह बिसोरते हुए कहा और वहाँ से चली गई। हमना ने अपनी पेंटिंग को देखा जो मुकम्मल हो चुकी थी। उसमें एक मुस्कुराते हुए लड़के का स्केच था। उसने नीचे लिख दिया था, ला हासिल मोहब्बत। आज यूनिवर्सिटी में क्रिकेट मैच था। सब स्टूडेंट ग्राउंड में मौजूद मैच देख रहे थे। पहले शाहजैन की टीम की बारी थी, जिन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था। इबाद की टीम भी अच्छा खासा खेल रही थी। आखिरी बारी इबाद की थी। मेहरमा पुरजोश अंदाज में इबाद के नाम के नारे लगा रही थी। आखिरी गेंद पर इबाद को सिक्सर मारना था और जीत उनकी, लेकिन मुकाबिल में शाहजैन था जिसने हारना सीखा ही नहीं था। इबाद ने बल्ला घुमाया और बाल आसमान में। मेहरमा की खुशी से चीखें निकली थी। शाहजैन गेंद कैच करने ही वाला था कि उसकी नज़र मेहरमा पर पड़ी, जो इबाद की जीत की मुंतज़िर थी। शाहजैन ने कैच छोड़ दिया। पूरे ग्राउंड में शोर मचा था। पहली बार शाहजैन हारा था। सब शाहजैन को हैरत से देख रहे थे क्योंकि उसने इतना आसान कैच छोड़ दिया था। इबाद के जीतने पर मेहरमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। शाहजैन मुस्कुराता हुआ उसे अपनी आंखों के हिसार में लिए हुए था। ओह गॉड, आई कैंट बिलीव इट। शाहजैन एक लड़की के लिए हार गया, सबा ने तंजन कहा। इट्स नॉट योर मैटर। शाहजैन ने उसी के लहजे में उसे जवाब दिया और वहाँ से चल दिया। मुबारक हो, शाहजैन ने मेहरमा के पास आकर धीरे से कहा। मुझे क्यों? इबाद को दें मुबारकबाद, मेहरमा ने मासूमियत से कहा। ट्रीट तो बनती है, शाहजैन ने मुस्कुराते हुए इबाद से कहा। हाँ हाँ ज़रूर, इबाद ने खुश दिली से कहा और फिर वो तीनों कैंटीन की जानिब चल दिए। इबाद मेहरमा के साथ उनके घर ही आ गया था। मेहरमा उसके लिए चाय बना रही थी और वो उसके पास खड़ा बातें कर रहा था। कैंची कहाँ गई? मेहरमा कब से दूध का पैकेट खोलने के लिए कैंची ढूंढ रही थी। ज़ुबान से ट्राई करो, इबाद ने शरारत से कहा। क्या? मेहरमा ने नासमझी से कहा। तुम्हारी ज़ुबान भी तो कैंची की तरह चलती है, इसी से खोल लो, इबाद ने कहकर खुद ही कहा लगाया। वेरी फनी, मेहरमा ने मुंह बिसोरते हुए कहा। तुम्हारी ज़्यादा चलती है, तुम खोल दो, उसने भी तंजन कहा। मेहरमा फ़ाइज़ा बेगम किचन में दाखिल होते हुए मेहरमा को गुस्से से घूर कर बोली। समझा लें अपने भांजे को, बिला वजह मेरे मुंह लग रहा है। मेहरमा ने गुस्से से कहा। मेहरमा बहुत बदतमीज़ हो गई हो तुम, फ़ाइज़ा बेगम ने उसे डांटते हुए कहा। सब कुछ मैं ही करती हूँ और ये इबाद, ये भी कब से फजूल बोल रहा था, जब नहीं सुना आपने उसको। बाबा जानी को आने दें, आप दोनों की शिकायत करूँगी, मेहरमा गुस्से से कहती हुई कमरे में चली गई और इबाद मुस्कुराता उसे देखता रहा। बाबा, आपको पता है ये बात कब से मुझे परेशान कर रहे थे और ममा भी मुझे ही डांट रही हैं। मेहरमा ने ज़ुहैब साहब के घर में आते ही फ़ाइज़ा बेगम और इबाद की शिकायत लगाई। ओह भाई, क्यों तंग कर रहे हैं आप दोनों मेरी मासूम बच्ची को? ज़ुहैब साहब मुस्कुराते हुए बोले। कुछ ज़्यादा ही मासूम है आपकी लाडली, फ़ाइज़ा बेगम ने हंसते हुए कहा। देख लें बाबा, अब मजाक बना रही हैं ममा, मेहरमा ने रूहानसी होते हुए कहा।
اچھا بس بھی کریں آپ دونوں۔ زہیب صاحب بولے، عباد آج یہیں ہو، تہمینہ نے گھر سے تو نہیں نکال دیا تمہیں؟ زہیب نے شرارت سے کہا، نہیں ماموں، میں نے سوچا آپ کو بھی وقت دے دوں، ورنہ آپ بھی سوچتے ہوں گے میرا اکلوتا بھانجا کتنا مصروف ہے۔ عباد نے مسکراتے ہوئے کہا، مصروف کا تو پتہ نہیں، لیکن ہر وقت یہیں پڑا رہتا ہے۔ محرمہ عباد کے برابر میں کھڑی تھی، اس نے دھیرے سے کہا، اتنا دھیرے کہ عباد ہی سن سکا تھا۔ عباد نے اسے گھوری سے نوازا۔ شاہزین ٹیرس پر کھڑا ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے محرمہ کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ بلا شبہ محرمہ بہت حسین تھی اور بے وقوف بھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس سے شاہزین متاثر ہوا تھا، ورنہ کتنی لڑکیاں اس کی دیوانی تھی، لیکن اس نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور محرمہ اس سے تو اس کی آنکھیں پلٹنا ہی بھول جاتی تھی۔ ماموں، ہم سب یونیورسٹی کی طرف سے ٹور پر سوات جا رہے ہیں۔ وہ سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب عباد نے زہیب صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ تو اچھی بات ہے۔ زہیب صاحب مسکراتے ہوئے بولے، آپ محرمہ کو بھی جانے کی اجازت دے دیں۔ عباد نے چہرے پر معصومیت سموئے کہا، محرمہ کیا کرے گی جا کر وہاں؟ میرے خیال سے محرمہ خود بھی نہیں جانا چاہ رہی۔ زہیب صاحب نے بہانہ بنایا، جو ہم سب کریں گے محرمہ وہی کرے گی وہاں۔ ظاہر سی بات ہے ماموں، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو گھومیں گے ہی نا۔ عباد نے وضاحت کی، لیکن زہیب صاحب نے انکار کرنا چاہا۔ ماموں پلیز، عباد التجائیہ انداز میں بولا، اکیلے بھیجنے کا میرا دل نہیں مان رہا۔ زہیب صاحب نے خدشہ ظاہر کیا، میں ہوں نا، اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، بس آپ ہاں کر دیں۔ عباد کے اصرار پر زہیب صاحب نے ہاں کر دی۔ بیا آپی، 8 سالہ بچہ چلاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ جی آپی کی جان، بیا نے اس سے پیار کرتے ہوئے کہا، یہ میں آپ کی شادی میں پہنوں گا، اچھی ہے نا؟ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی شیروانی اسے دکھاتے ہوئے کہا، بہت اچھی ہے۔ اپنی شادی کا سن کر بیا کا دل اداس ہو گیا۔ بمشکل چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، بیٹا جاؤ، بابا آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، بیا، انہوں نے اسے پکارا۔ جی امی۔ بیا نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارا شادی کا جوڑا اور زیورات ہیں، دیکھ لو، اور کچھ چاہیے ہے تو بتا دو۔ انہوں نے بیڈ پر ساری چیزیں رکھتے ہوئے کہا، جو چاہیے وہ آپ کبھی دے نہیں سکتی۔ بیا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، بیا، ایک ہی بات کو بار بار مت دہراؤ۔ انہوں نے سختی سے کہا، امی آپ کچھ کریں پلیز، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ بیا نے ان کے ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے التجائیہ انداز میں کہا، میں کوشش کروں گی۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔